नेक्स्ट। हेलो, क्लास चल रही। गुड इवनिंग। टेक योर सीट प्लीज। Thank you, sir. Shakshi, Shashi, sir. Sasi, sorry. Yes, sir. You have been from Sant Kabir Nagar. Yes, sir. Sant Kabir Nagar is a very famous district. Yes, sir. It has some connection, some legendary personality. Yes, sir. And who that legendary personality is? Sant Kabir Das. Sant Kabir Das. Who, for what Sant Kabir Das is famous for? Sir. What connection does he have, or do you find of Kabir Das to Sant Kabir Nagar? Yes, sir. Sir, this district is the field activity of the Sant Kabir Das. Here, Sant Kabir Das, by profession, Sant Kabir Das is a weaver, but he is also a very well-known poet and a philosopher. और मतलब यहाँ पे उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो थी डिस्क्रिमिनेशन, उसको इरेडिकेट करने की कोशिश की थी। और Good. Shashi, before we continue, Yes, sir. here we want to know a little about you. So before we begin our interview process properly, we would like to know about yourself. So introduce yourself first. My name is Shashi. I have done my schooling from Rani Railway Senior Secondary School, and after that I have done graduation from St. Andrews PG College and post graduation in zoology from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, and then I have done B.Ed from Saraswati Vidya Mandir Mahila Mahavidyalaya. I have qualified my central teaching eligibility test in 2021. If I talk about my hobbies, I like to do art and craft. My strengths are I am hardworking, honest, and patient. Okay. You said you are patient. Yes, sir. I mean say you have patience. If you find that there are 2 or 3 children, they are just drowning in a pond. Sir, drowning. दे डूब रहे हैं, 3 बच्चे Yes, डूब sir. रहे हैं एक नदी में या एक तालाब में, और आपके पास पेशेंस बहुत है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? किसी और आप स्वयं तैरना नहीं जानती, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, तो विल यू ट्राई टू गेट देम आउट फ्रॉम द वाटर, आर यू वेट फॉर समबडी टू कम एंड हेल्प? Sir, I will try to take out from them water. You don't know swimming, you don't know how to swim, so Yes, how sir. will you save them? Sir, I will throw any rope. मतलब मैं रस्सी फेंक के भी उन लोग को बचा सकती हूँ. Okay, meaning thereby you would patiently think the method, how can you take them out, and after that you would do. Okay sir, fast you. आज के दिन का इतिहास कुछ है? Sir, आज कौन सा दिन? sir, 13th of April. 13th of April को इंडिया में कुछ हुआ था हिस्ट्री में? सर आज का तो नहीं याद है, पर कल का याद है, 14th of April, वो कल अम्बेडकर जयंती है. अच्छा, आप शिक्षक क्यों बनने जा रहे हैं? शिक्षक क्यों बनना चाहती हैं आप? Sir, because my educational qualifications fulfill all the required degree for a teacher, and my family background, मेरा मतलब जो family background है वो भी teachers का रहा है, तो इससे मुझे inspiration मिलती है. और during my graduation I used to give tuition in my locality for some children, और मुझे उससे satisfaction मिलता था, इसीलिए. ओके, एज ए टीचर, Yes, sir. प्राइमरी टीचर, आप जो है कौन से विषय को पढ़ाने में कंफर्टेबल फील करेंगे? अगर आपके प्रधानाचार्य ने आपको ऑफर किया कि कक्षा 5 में आपको विषय पढ़ाना है, तो आप क्या पढ़ाना चाहोगे? सर सारे ही अच्छे हैं मेरे लिए. फिर भी अगर आप If out of all those 5 subjects you are given over there to teach, if you are select anyone out of them, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, लैंग्वेज, सर किसको prefer environmental करोगे? studies. इन्वायरमेंटल स्टडीज को आप किस मेथड से पढ़ाएंगे? किन किन विधियों का प्रयोग इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने में किया जा सकता है? Sir, observation method. यस, For example,
अगर मैं उन्हें वाटर साइकिल पढ़ाऊँगी क्लास 5th में, तो मैं उन्हें वो जो घर पे मतलब उनके जो घर पे किचन मतलब होगा उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वेपराइजेशन होता है जब वो वाटर की बॉइलिंग होती है तो वो कंडेंस होकर फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन अच्छा, मेथड कक्षा 5 की जो गणित की पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है क्षेत्रफल का, एरिया। यस सर। एरिया का, और उसको आकृति के द्वारा उसने समझाने का प्रयास किया। आप इसे किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किन विधियों से इसे पढ़ाना चाहेंगे? सर फील्ड ट्रिप मेथड से। इसके अलावा और कोई विधि? सर आपको गृह कार्य यदि देना है विद्यार्थी को क्षेत्रफल के लिए इस चैप्टर में गणित, आप क्या देना चाहेंगे? सर मैं उन्हें बोलूँगी कि आपके मतलब जो भी शेप्स हैं मतलब स्क्वायर हैं, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स है रेक्टेंगल शेप का, आप उसका एरिया निकाल के मुझे बताइए। केंद्रीय विद्यालय संगठन को कब गठित किया गया था? सर 1963 15th इसकी of स्थापना के उद्देश्य क्या थे? सर टू प्रोवाइड द क्वालिटी एंड कॉमन एजुकेशन टू द सेंट्रल डिफेंस सॉरी सर चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड जो होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग होती है मतलब ट्रांसफ़र कभी भी हो जाते हैं तो उनको मतलब दिक्कत होती है। क्या आपके गृह राज्य में कोई ऐसी विद्यालय चलाए जाते हैं इस प्रकार के? ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों के उद्देश्य से इसको लेकर के आई थी, तो क्या आपके गृह राज्य में कोई विद्यालय चलाया जाता है इस प्रकार से? सर सॉरी सर। ठीक है, आपकी डिग्री पर आते हैं। आपने किन विषयों पर पढ़ाई किया? ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप एलिमेंट्री एजुकेशन में किस प्रकार से आप लेकर के जाएंगे? किस प्रकार से केमिस्ट्री को विद्यार्थियों के साथ? सर जैसे कि केमिस्ट्री में हम लैब में जाते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तो मैथ्स में हम लेबोरेटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं फॉर टीचिंग। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन में यस सर। साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती? सर वो क्या पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती? सर वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। वाई, क्यों? सर कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो एसएसटी और साइंस को ईवीएस में इंक्लूड किया गया। अच्छा, अगर ईवीएस की परिभाषा या एनवायरनमेंट की परिभाषा यदि मैं बात पूछूं, ईवीएस छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट की क्या परिभाषा आप बताएंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए? सर द सराउंडिंग्स, मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं सराउंडिंग से रिलेटेड करके बताएं। ये आसपास आपके एनसीईआरटी में पुस्तक का नाम है आसपास, उसका Yes, मतलब क्या है आसपास? सर सराउंडिंग्स। मतलब आसपास से क्या है, क्यों उसको आसपास ही रखा गया है ना, किताब का नाम ही आसपास है। जो भी मतलब इंसिडेंट्स सिचुएशंस होते हैं हमारे आसपास, उससे रिलेट करके उसमें पढ़ाया गया एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। अच्छा बताइए, आपका कोई आदर्श टीचर है? यस सर। आदर्श टीचर के गुण कुछ बता सकते हैं? यस सर। दो प्रश्नों को मैं पूछा हूँ, आदर्श टीचर आपका कौन है? पहला तो इसका आंसर आप दीजिए। सर अंजू मौर्य मैम, शी इज़ अ बायोलॉजी टीचर एंड द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर टू इंस्पायर देयर लर्नर्स, सर टू प्रोवाइड मेंटरशिप एंड सर वो पेशेंस होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि डिफरेंट जो नीड्स होते हैं बच्चों के वो फुलफ़िल कर सकें। यदि बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है पढ़ने में, तो कैसे आप इंटरेस्ट जगाएंगे? सर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके। कैसे? सर उसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, तो बच्चे स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा, कभी पढ़ाया है आपने? ये सर घर पे। क्या चुनौतियाँ आती हैं पढ़ाने में? सर वो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, अच्छा, तो उन्हें मतलब वो पढ़ाने के लिए बीच बीच में स्टोरीज इंक्लूड करके या फिर कुछ डायग्राम्स वगैरह बना के तो उन्हें हम इंटरेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, वर्तमान समय में शिक्षा के सामने कोई चुनौती आपको दिखती है आपके नज़र में, और कैसे उसको समाज से, कैसे समाज और शिक्षा में क्या कोई संबंध है? शिक्षा से कैसे समाज को प्रभावित होता है, इसका कुछ बारे में आप कुछ बताएंगे? सर मेरे एज ए टीचर। यस सर, एज अ टीचर सर जो शिक्षा है जी। वो सिर्फ एक मतलब ऐसे
रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों के जो एजुकेशन है कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए और उसे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देनी चाहिए, मतलब एक अच्छा इंसान बनाने पर भी फोकस उसका करना उद्देश्य मेनली उद्देश्य क्या है उसका शिक्षा का, वही पूछना सर, चाहता हूँ। मतलब उसमें बच्चे में स्किल हो ताकि वो अपनी जो लाइवलीहुड है वो कैरी ऑन कर सके और एक अच्छा इंसान बन जाए। ओके, थैंक यू शशि। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्लीज कीप सिटिंग। नाउ द टाइम फॉर फीडबैक। शशि, आपने क्लास की है पढ़ते समय, वो आपके बोलने में दिखता है, साफ बता रहा हूँ। एक काम आप नहीं कर पाई शायद, आप मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, आप स्वभाव से इंट्रोवर्ट हैं, यस सर। अंतर्मुखी हैं। शब्दों के ज्ञान आपके बड़े अच्छे हैं। जिन शब्दों का बोलते समय आप अंग्रेजी के जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो करती हैं, वो बताते हैं कि आपने पढ़ा ठीक से, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकट कर पाने की दिक्कत थोड़ी है, यस सर। है ना? वो समझ रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं वही बता रहा हूँ जो आप में जहाँ है फीडबैक पे। आपको करना क्या है बच्चा, 2 घंटे 1 घंटे अभ्यास करिए शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की। नॉलेज, शब्दों का पकड़, आपका उच्चारण, जो शब्द बोलते हैं क्लीन है बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोलते वो स्ट्रेटजी बोलते समय सही से स्ट्रेटजी शब्द नहीं निकलेगा। व्हेन यू सेड दैट आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज, तो योर साउंड वाज गुड एंड एवरीथिंग वाज कमिंग क्वाइट क्लीन। तो मतलब मुझे ये था कि क्लियर है कि आपने पढ़ा है, सिस्टम ठीक है, बस आप इंट्रोवर्ट है, प्रकट करने में हिचकिचाहट है, थोड़ा सा दबी रहती है, उसी से बाहर निकल जाइए, बाकी तो आप कमाल कर देंगी तब। ठीक है ना? प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़, कर बाद पहले आए तो Yes, sir. उसको रोकना भी होगा, है ना? और थोड़ा सा इस आपके चेहरे पे हमें ही चाहेंगे जब आप बताएं, थोड़ा सा थोड़ा glow लाए, ग्लो लाए, थोड़ा थोड़ा खुशी। सा, जैसे मैं इससे आपसे टकरा बात जाए, कर चेहरे डर पर glow किस लाइए। चीज़ का? हाँ, तो मैं आपको नॉर्मल करने की देखी, मैं बिल्कुल हाँ आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि आ आप जाओ। नॉर्मल हो जाइए, और आप नॉर्मल हुई भी और अच्छा बताएं भी, नो डाउट इसमें। तो थोड़ा सा वो करेंगे ना तो अगला भी नॉर्मल आपसे होगा, है ना? ठीक है। अगर हम इसके आपको अलावा normal कर अगर लेंगे- देखा जाए तो आपका आई कांटेक्ट ठीक है, आपने अच्छा आई कांटेक्ट बनाया सभी लोगों के साथ। थोड़ा सा जैसा सर ने बताया कि आप अपने चेहरे पर थोड़ी सी हाँ, स्माइल। हाँ स्माइल नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा आप अपने है तो स्वाभाविक, जो हाँ। आपके चेहरे पर दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, एनर्जी वो नहीं लेवल भी बढ़ रहेगा। जाएगा ना, आज एनर्जी पहला लेवल दिन था बढ़ गया, और तो जो हो मैंने गया। कहा वो कर लिया तुमने। दूसरी बात पढ़े यह है तो कि हो। आपसे जब कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि एनवायरनमेंट की परिभाषा क्या होती है छोटी-छोटी चीजों को। एज एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो अगर आप नहीं जानती थी तो आपको उस पर सॉरी बोलना चाहिए था, है ना? बाकी परिभाषा मैं अगर थोड़ा सा भी अगर आपको बता सकूं, बाद में मिलिएगा तो बताया जाएगा। देखो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो सर ने क्वेश्चन पूछा वो दोनों को रिलेटेड थे। सर ने आपसे सवाल पूछा कि क्यों उस पुस्तक का नाम आसपास रखा गया है, यस सर। ठीक है ना? आसपास मीन्स योर एनवायरमेंट, चाइल्ड का एनवायरमेंट, इसी नाते उस किताब का नाम आसपास रखा गया है ना? और एनवायरमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो नेचुरल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मीन्स नेचुरल एनवायरमेंट के साथ साथ सोशल एनवायरमेंट भी मायने रखता यस सर। है ना? बालक का परिवार, उसके माता पिता, उसके मित्र, उसका विद्यालय, तो ये इंक्लूड करने के लिए उस पुस्तक का नाम आसपास रखा गया यस सर। है ना? तो अगर आप नहीं जानते तो आप सॉरी बोल सकते हो, है ना? बाकी आप उसको सीखने का प्रयास करें, थोड़ा सा टीचिंग मेथड को जानने का प्रयास करिए, थोड़ा टीचिंग मेथड पर जो आपसे सवाल होंगे उसका आप उत्तर दें। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा कि एनवायरनमेंट को पढ़ाने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, तो आप कम से कम 4-5 विधियों को गिनवाएं, है ना? एज लाइक आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना? प्रक्षेपण लेक्चर विधि, मेथड, observation है ना? बोला है। इसके अलावा आप मेथड्स को बता सकते प्रेक्षण भी हैं, बताया, है ना? अच्छा बताया। लेकिन आप इस बात की सावधानी रखिएगा कि जिन मेथड को आप बताएं उस मेथड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी मेथड का नाम लेंगी तो उस मेथड से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? किसी मेथड को, पहली बात 3 चीजें जानिएगा उस मेथड में। पहली तो पढ़ाते कैसे हैं, दूसरा उसकी मेरिट क्या है, और तीसरी उसकी डीमेरिट क्या है, बस। बाकी आप बेटर हो, बहुत अच्छे हो, आपका काम हो सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।